آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ، میں ہوں محمد یاسر اللہ شکیل۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تباہ شدہ سڑکوں، منہدمہ پلوں کی مرمت کے لیے فوری فنڈ جاری کیے جائیں۔ پروجیکٹ کی دیکھ بھال اور گیٹ کے کام جنگی خطوط پر کیے جائیں۔ مانسون کی تیاریوں پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ ریاست بھر میں 2 جون بروز منگل کو یوم تاسیس کی تقاریب، پریڈ گراؤنڈ پر مرکزی تقریب، اہم اعلانات متوقع، ملازمتوں سے متعلق 3 اعلامیوں کی اجرائی۔ تلنگانہ حکومت نے تبادلوں پر لگائی دوبارہ پابندی، 1 جون سے عمل، تمام محکمہ جات کو سختی سے عمل کی ہدایت، 6 ماہ تک نرمی کی تجویز پر غور نہیں ہوگا۔ شراب نوشی کا بھیانک انجام، بنجارہ ہلز میں ساتھی کے ساتھ شراب پینے والے آٹو ڈرائیور کا قتل۔ مارٹ پلی میں مینوشی کے دوران دوست کے ہاتھوں دوست مارا گیا۔ آن لائن بیٹنگ ایپ کے خلاف CID کا 3 ریاستوں میں کریک ڈاؤن، 11 افراد گرفتار، 46 بینک اکاؤنٹ منجمد۔ CID چیف چارو سنہا کی پریس کانفرنس۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس، پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ، کیو میکس RF آرکیٹ، الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کریں، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مانسون کی آمد کی تیاریوں کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ کسانوں میں امکانی بارش کی کمی کے پیش نظر حالات سے نمٹنے کے لیے شعور بیدار کریں۔ کسانوں کو مشورہ دیا جائے کہ ان فصلوں کو فروغ دیں جن کے لیے پانی کم درکار ہوتا ہے، اور اس فصل کے فوائد سے بھی واقف کرایا جائے۔ تمام پروجیکٹ کے مینٹیننس اور گیٹ کے کام جنگی خطوط پر مکمل کیے جائیں۔ پروجیکٹ کے مینٹیننس کے لیے فوری فنڈ جاری کریں۔ تباہ شدہ سڑکوں اور منہدمہ پلوں کی فوری مرمت کے لیے بھی فنڈز جاری کیا جائے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے 1000 کروڑ روپے کے فنڈز کا بھی قواعد کے مطابق استعمال کریں۔
वज़ीर आला ने हिदायत दी कि आफात के दौरान जानी और इमलाक के नुकसान के अलावा मवेशियों के नुकसानात पर भी फौरी इक़दाम करें। महकमे मौसमियात की तरफ से जनूब मगरबी मानसून की पेशरफ्त और दीगर अहम पहलुओं से भी वज़ीर आला को वाकिफ कराया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP CV आनंद के अलावा सेहत, पंचायत राज, दाखिला, हाइड्रा, आफात समावी के अलावा फायर ब्रिगेड के ओहदेदार भी शरीक थे। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब 2 जून बरोज़ मंगल को मनाई जाएगी। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर परचम कुशाई अंजाम देंगे और परेड की सलामी लेंगे। गर्मी की शिद्दत की वजह से परेड ग्राउंड पर यह तकरीब सुबह 8:30 बजे मुनक्किद की जा रही है। हुकूमत के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 2 जून को मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। इंदरमा मकानात की तकसीम और संग बुनियाद का आगाज़ होगा। वज़ीर आला के रियासत के मुख्तलिफ दौरों का भी आगाज़ होने जा रहा है। 3 जून को वज़ीर आला महबूब नगर में प्रोग्राम में शरीक होंगे। 4 जून को भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम अजला में यौम तासीस तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत की तरफ से वज़रा, मुशीरान, विप्स, स्पीकर, सदनशीन कौंसल व दीगर को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तेलंगाना में 2 जून को मनाए जाने वाले यौम तासीस के मौके पर हुकूमत की तरफ से मुलाजिमतों से मुताल्लिक़ 3 एलामिये जारी किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदनशीन बुर्रा वेंकटेशम ने मीडिया से बात करते बताया कि मंगल को 3 एलामिये जारी होंगे। 1 हफ्ते के बाद मज़ीद एलामिये जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जून के महीने में मुलाजमतों से मुताल्लिक़ 5 ता 6 एलामिये जारी किए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि तकर्रुरात के अमल को तेज़ करने के लिए हर माह आइंदा से नोटिफिकेशन जारी होंगे। उन्होंने बताया कि महकमे फाइनेंस की जानिब से मुख्तलिफ महकमे जात में 3800 जायदादों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स की 1393 जायदादें भी शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत ने तबादलों पर फिर से पाबंदी लगा दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया की जानिब से सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत ने 31 मई की नरमी की मुद्दत खत्म होने के बाद 1 जून 2026 से तबादलों पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी है। महकमे फाइनेंस के तहत जो अहकाम जारी हुए उसमें यह कहा गया कि अब तबादलों की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ चंद मामलात को इस्तिस्ना दिया गया है। हुकूमत ने यह भी हिदायत दी है कि 6 माह की मुद्दत से किसी किस्म की नरमी की तजवीज़ पर गौर नहीं किया जाएगा। मुस्तकबिल में किसी भी नरमी के लिए वज़ीर आला से मंजूरी दरकार होगी जो क़वायद के ताबे होगी। महकमे जात को हिदायत दी गई है कि मखलूआ जायदादें ऐसे मुलाजमीन से पुर की जाएं जिन्होंने अपनी मौजूदा पोस्टिंग पर कम अज़ कम 1 साल की सर्विस मुकम्मल की हो। तमाम महकमे जात के सरबराहान को इन अहकाम पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। अहकामात में सराहत की गई है कि क़वायद के बरखिलाफ तबादले किए जाते हैं उनकी अदायगियों के बिल्स मंजूर नहीं किए जाएंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने कहा कि मुलाजमीन सरकार के लिए एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम EHS को एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट के जरिए रुबामल लाया जाएगा। आइंदा चंद दिनों में इसके क़वायद जारी कर दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी हेल्थ स्कीम के बारे में मुलाजमीन सरकार की मुख्तलिफ तंजीमों, यूनियन के नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के इलाज व मुआलजे की बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए मुखलिस है। इस स्कीम को किसी रुकावट के बगैर आसान व काबिल दस्तरस बनाने की कोशिश है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण को हैदराबाद में मुजव्वजा जलसे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा, हम किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसने तेलंगाना के अवाम की इज्जत व नफ्स को ठेस पहुंचाई हो। अगर बीजेपी की हिदायत पर पवन कल्याण तेलंगाना में नफरत और फिरकावारियत को हवा देना चाहते हैं तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, पवन कल्याण अपना इजलास बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते। पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि क्या पवन कल्याण अपने बॉस मोदी को खुश करने के लिए हैदराबाद में ये इजलास करना चाहते हैं। पवन कल्याण को पहले तेलंगाना के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद ही यहाँ इजलास करना चाहिए। इस दौरान ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि सैबराबाद पुलिस ने पवन कल्याण को इजलास की इजाज़त नहीं दी है। तेलंगाना रक्षणा सेना की जानिब से तेलंगाना के जहदकारों की ख्वाहिशात के मौजू पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में ला गया।
इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने आंध्रा के नायब वजीर आला पवन कल्याण के तेलंगाना से मुतालिक रिमार्क्स पर बरहमी इज़हार की। कविता ने कहा, दस्तूरी कवायद के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई थी। पवन कल्याण तेलंगाना नवनिर्माण के नाम से इजलास मुनक्किद करने वाले हैं। पवन कल्याण को पहले आंध्रा पर तवज्जो देनी चाहिए। कविता ने कहा, आंध्र प्रदेश के वज़रा लोकेश और पवन कल्याण को सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने वाले बारिश को वहां के पानी को रोकने पर पहले गौर करने की जरूरत है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, पार्टी के सरकारी तर्जुमानों के तखर्रुर के लिए राहुल गांधी ने नई रिवायत शुरू की है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने बताया कि टैलेंट हंट के नाम से तर्जुमानों की तकर्रुरी अमल में लाई जा रही है। कौमी और रियासती सियासती हालात से बाखबर अफराद को मौका फराहम करना इसका मकसद है। ऐसे लोग जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं उन्हें मौका दिया जाएगा, और ऐसे लोग जो माशरे की खिदमत का जज्बा रखते हैं वो इस ओहदे के अहल होंगे। टैलेंट हंट के नाम से जो रिवायत शुरू की जा रही है, इससे नौजवानों का कौम की तामीर में अहम रोल रहेगा। बीजेपी के लीडर एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस की हुकूमतों ने तेलंगाना को कर्ज में डुबो दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा, पहले बीआरएस और अब कांग्रेस दोनों बदउनवानियों में मुलविस हैं। उन्होंने कहा, बीआरएस और कांग्रेस की हुकूमतों ने बरखी के शोबे को तबाह किया है। अवाम को एक गहरे कोहरान की तरफ ढकेला जा रहा है। कांग्रेस इंदिरम्मा राज्यम का दावा करती है, लेकिन मुफ्त बरखी की स्कीम पर पानी फेर रही है। फीस की बाज़दायगी न होने से कॉलेज सर्टिफिकेट फराहम नहीं कर रहे हैं। इससे तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। हुकूमत तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। गैस कंपनियों ने एक बार फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया है। दिल्ली एनसीआर में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि मुल्क की दूसरी रियासतों में भी 42 रुपए का इजाफा हो गया है। इस तरह से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, अब एक बार फिर से यहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनदगान से अपना वेरिफिकेशन कराने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि अब तक सिर्फ 60% इस्तेफादा कुनदगान ने ही अपना वेरिफिकेशन करवाया है। माबाकी इस्तेफादा कुनदगान को फौरी तौर पर अपना वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। रुकन असम्बली ने यह भी कहा कि तमाम मंडल के तहसीलदारों से भी ये दरख्वास्त की गई है कि जो इस्तेफादा कुनदगान सेहत की बिना पर मुताल्लिक़ा दफातर को नहीं आ सकते, उनका घरों पर जाकर वेरिफिकेशन किया जाए। रुकन असम्बली ने कहा कि वेरिफिकेशन फौरी तौर पर कराया जाए ताकि वज़ाइफ में कोई खलल ना हो। मैं मलकपेट की आवाम से ख़ास तौर के ऊपर ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग पेंशन के लाइव वेरिफिकेशन नहीं कराए, अभी तक जो डेटा मैंने मंगा कर चेक किया है 60% के अंदर ही लोग अभी तक वेरिफिकेशन कराए और आधे लोग वेरिफिकेशन कराना है। मैं उन तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ जो बेवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन या डिसेबल पेंशन जो भी ले रहे हैं, वो लोग अपना लाइव वेरिफिकेशन कराएं ताकि आने वाले दिनों में पेंशन रुक जाएगा तो उनको तकलीफ़ होगी। मैंने ख़ास तौर पर तमाम मंडल के एमआरओज़ को भी हमने मीटिंग लेकर कहा है कि जो लोग घरों से निकल कर आकर लाइव वेरिफिकेशन नहीं करा सकते, उन लोग को आप घर के ऊपर जाकर भी वो लोग वेरिफिकेशन कराने को तैयार है, जो बिल्कुल ही नहीं चल फिर सकते। लेकिन बखैर कई लोग जो अब तक लाइव वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, मेरी उनसे तमाम से गुजारिश है कि टाइम जा रहा है, सिर्फ 15 दिन बचे हैं, आप लोग जल्द से जल्द अपना लाइव वेरिफिकेशन करा लें ताकि आपको वजीफ़ा मिलने में कोई दुश्वारी ना हो। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चार मीनार, सैदाबाद और अंबरपेट मंडल के तहत मंजूरा 454 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 4 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं उनकी भी जल्द यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इस्तिफादा कुनदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। आज सईदाबाद, अंबरपेट और चार मीनार तीनों मंडल से मिलाकर 454 बेनिफिशरीज में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए हैं, जिसकी लागत
4,60,00,000 سے زیادہ ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی اپلیکیشنز پینڈنگ ہے جلد سے جلد کرائیں، ختم کرائیں، اور جو لوگ شادی کرا کر جو شادی مبارک ہے اور کلیان لکشمی کے پیسوں کے انتظار میں ہیں، جلد سے جلد اس کو ان کی چیکس ان تک پہنچائی جائے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے حلقے کے مختلف علاقوں میں آبرسانی و برقی کی صورتحال کا محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر ورکس و سیوریج بورڈ کے جنرل مینیجر، ملک پیٹ یاقوت پورہ چیف جنرل مینیجر، برقی کے ٹرانسمیشن کمیٹی کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ سعید آباد، اکبر باغ، اعظم پورہ و دیگر علاقوں میں پانی کی قلت کو دور کرنے، ناکارہ بورویلز کو کارآمد بنانے، پانی کے پریشر کو تیز کرنے، درکار برقی کی سرواری کا جائزہ لیتے ہوئے عاجلانہ عمل آوری کی ہدایتیں دی گئیں۔ اجلاس میں مجلس کے سابق کارپوریٹرز اور دیگر ذمہ داران شریک تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی نے عثمانیہ دواخانہ پہنچ کر خلق پر حملہ ہونے کی وجہ سے فوت ہونے والے عادل آباد کرنے والے بس ڈرائیور کی میت کو ورثہ کے حوالے کرنے میں مدد کی۔ متوفی بس ڈرائیور کو حیدرآباد میں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ریاض الحسن آفندی نے تمام کارروائی کے بعد مرحوم کی میت کو ورثہ کے حوالے کیا۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ بی آر ایس لیڈر و سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ بی آر ایس کے دور حکومت میں آئی ٹی کمپنیوں کے لیے اراضی فراہم کی گئی تھی، لیکن آج کانگریس حکومت ان اراضیات پر ڈمپنگ یارڈ قائم کر رہی ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے رکن اسمبلی انجے یادو کے ہمراہ سیتاپور دیہات میں ڈمپنگ یارڈ کے قیام کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری ڈمپنگ یارڈ کی تجویز سے دستبرداری اختیار کی جائے۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے شاستری پورم ڈویژن میں آبرسانی کے موضوع پر محکمے آبرسانی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ اجلاس منعقد کیا۔ اس میں جنرل مینیجر سائی لکشمی، ڈی جی ایم مہیشور راؤ کے علاوہ دوسرے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر عوام کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا، مسائل کی جلد یکسوئی کے لیے ہدایت دی گئی۔ اس موقع پر محکمہ آبرسانی کے میجر جنرل صادق علی اور سابق کارپوریٹر حبیب زین عارف بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے ریاستی سطح پر 99 دنوں کا پرجا پالنا پرگتی پرانالیکا پروگرام جاری ہے، جس کی شروعات 6 مارچ سے ہوئی تھی۔ اس کا اختتام 12 جون کو ہوگا۔ پروگرام کے اغراض و مقاصد میں ترقیاتی کاموں، عوامی خدمات، فلاح بہبود کے کاموں میں تیزی پیدا کر کے مستحق عوام کو فائدہ پہنچانا ہے۔ زو پارک کے کنزرویٹر ایم کشیدہ نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ زو پارک میں ماحولیات اور دوسری شعور بیداری کے لیے پروگرام 1 جون تا 12 جون تک منعقد ہوگا۔ پروگرام میں زو پارک کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ شراب کے شوق نے خاندان کو بے سہارا کر دیا۔ بنجر ہلز پولیس اسٹیشن کے تحت قتل کا ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بنجر ہلز کا ساکن 38 سالہ محمد عمران، جو آٹو ڈرائیور تھا، آٹو چلانا چھوڑ کر معین آباد کے ایک فارم ہاؤس میں اپنی بیوی اور 5 بچوں کو لے کر چوکیداری کر رہا تھا۔ اس کا ساتھی آٹو ڈرائیور احمد حسین نے عمران کو شراب نوشی کے لیے شہر آنے کی دعوت دی۔ گزشتہ رات ان دونوں نے خوب مینوشی کی۔ شراب نوشی کے دوران کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا۔ احمد حسین نے عمران کا گلا دبا دیا اور سینے پر گھونسے رسید کیے، جس سے وہ گر گیا۔ اس کو بے ہوش سمجھ کر احمد حسین وہاں سے چلا گیا۔ کافی دیر تک اسے ہوش نہ آیا، اس پر اسے دواخانہ لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دیا۔ مقتول کے بچوں میں 3 ماہ کا شیرخوار بھی شامل ہیں۔ مقتول کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قاتل کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف مارٹ پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں شراب نوشی کے دوران ایک دوست نے دوسرے دوست کا قتل کر دیا۔ سنجیویا نگر کا رہنے والا شراون اپنے دوست نکھل کے ساتھ شراب نوشی کر رہا تھا۔ کثرت سے شراب نوشی کے بعد ان دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ نکھل نے چاقو سے شراون پر پے در پہ حملے کیے اور شدید زخمی ہونے کے سبب وہ جاں پر نہ ہو سکا۔ پولیس کے مطابق حالت نشہ میں دونوں کے درمیان تکرار ہوئی، جو قتل کا سبب بنی۔ اس سلسلے میں کیس رجسٹر کر دیا گیا ہے۔ ریاستی سی آئی ڈی نے غیر قانونی آن لائن بیٹنگ کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 11 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سی آئی ڈی کے چیف چارو سنہا نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے بتایا کہ حکومت کی طرف سے غیر قانونی آن لائن بیٹنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے گزشتہ سال خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آن لائن بیٹنگ کے کیسز کی یکسوئی آسان نہیں ہے۔ ان کیسز میں مختلف اکاؤنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تحقیقات میں تاخیر بھی ہوتی ہے۔
चारू सिन्हा ने बताया कि उन्होंने चंद माह कबल करीमनगर के साकिन साई कृष्णा रेड्डी ने अपनी एक शिकायत में बताया था कि 2024 जनवरी से यहाँ पर 2025 तक उन्हें 9,95,000 रुपए का ऑनलाइन बेटिंग में नुकसान हुआ। इस केस को खुसूसी टीम को मुंतकिल किया गया था। खुसूसी टीम ने इस सिलसिले में तहकीकात की। बताया जाता है कि इस टोली में गुजरात के साकिनान मनीष सिंह, अभिषेक सिंह, अजीत सिंह, विजय पट्टीदार, युगुल पट्टीदार और प्रतीक प्रवीण को गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा दिल्ली के साकिनान दास, अभिषेक, हलीम, पंजाब के लव कुमार, सिमप्रति सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 3 कीमती कारें, 8 लैपटॉप, 2 आईपैड, 26 मोबाइल फ़ोन, 5 पासपोर्ट और 3,21,000 रुपए की नकद रकम को जब्त किया गया। इस टोली के अरकान को यौमिया 8 से 10 लाख रुपए कमीशन मिला करता था। सीआईडी की तरफ से कार्रवाई दिल्ली, गुजरात और पंजाब में की गई। 40 अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। मीरचौक पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ ग्रैंड होटल के पास जीएचएमसी की गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में दोनों जान जख्मी हुए, जिन्हें मुकामी खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। जगतियाल में कार में बैठकर आईपीएल मैच देखने के दौरान बेकाबू कार बौली में गिर गई। इस हादसे में कार चलाने वाला अरुण हलाक हो गया। बताया जाता है कि जगतियाल के मुरापल्ली के पास से निवेश, अश्विन और अरुण कार में जा रहे थे, लेकिन अरुण जो मुबैना तौर पर मोबाइल पर आईपीएल का मैच देख रहा था, कार पर काबू नहीं रख पाया और कार बौली में गिर गई। 2 घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने निवेश और अश्विन को बचाया, लेकिन अरुण की मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 और 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 और 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तबाहशुदा सड़कों, मुनद्दमा पुलों की मरम्मत के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं। प्रोजेक्ट की देखभाल और गेट के काम जंगी खतूत पर किए जाएं। मानसून की तैयारियों पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। रियासत भर में 2 जून बरोज़ मंगल को यौम तासीस की तकारीब। परेड ग्राउंड पर मरकजी तकरीब, अहम एलानात मुतवक्के। मुलाजमतों से मुताल्लिक़ 3 एलामियों की इजराई। तेलंगाना हुकूमत ने तबादलों पर लगाई दोबारा पाबंदी, 1 जून से अमल। तमाम महकमे जात को सख्ती से अमल की हिदायत। 6 माह तक नरमी की तजवीज़ पर गौर नहीं होगा।
शराब नोशी का भयानक अंजाम, बंजारा हिल्स में साथी के साथ शराब पीने वाले ऑटो ड्राइवर का कत्ल। मारटपल्ली में मैनोशी के दौरान दोस्त के हाथों दोस्त मारा गया। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के खिलाफ सीआईडी का 3 रियासतों में क्रैकडाउन, 11 अफराद गिरफ्तार, 46 बैंक अकाउंट मुंजमद। सीआईडी चीफ चारू सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।